Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to discuss our paper of UPSC Commerce Optional 2024, paper number 2. So, I will try to help in both the language, Hindi and English. So, please stay connected and try to take a maximum benefit out of these sessions. And I will also try to include whatever the insights we have received so far from all the students who have appeared, and I'm very sure their insights also going to help you a lot. Okay, so I'll start from basics because we have many viewers who are going first time with this preparation, and they even just went through a basic idea about the syllabus. So what we have to do is I'm going to go through the basic, and if you know the basics, just run up the video in a speed mode. But it's my request because you have to get ready for the UPSC surprises. So it's better to just see up these things well in advance, the basic pictures also. Okay, तो हम बेसिक आइडिया भी लेके चलेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पहली बार अपेयर कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ सिलेबस देखा है, फिर भी उन्हें एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नहीं है। तो इस पेपर के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर क्लियर होगी। और अगर आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट भी हैं तब भी आपसे रिक्वेस्ट है 2 मिनट आप देख के इस रिव्यूज़ को देखें, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इस बार का पेपर कैसा आया था और आगे किन सरप्राइजेस के लिए हमें रेडी रहना है। तो सबसे पहले मेरा हर एक स्टूडेंट से पहले जैसा ही प्रॉमिस और रिक्वेस्ट कि भाई यूपीएससी सरप्राइज देगा, उसके लिए तैयार रहना। नहीं दिया तो आप लकी हो, अगर दे दिया तो आप जब मेंटली रेडी रहोगे तो आप टैकल कर पाओगे, तो शॉक नहीं मिलेगा। पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स, so your paper is of 250 marks and you have 3 hours. Okay, so we have a 3 hours to do this paper. Okay, and the marks weightage is 250. We have 8 questions in this question paper, which is divided into 2 sections. Don't worry, I'm going to explain the 2 section very precisely, and printed both in Hindi and English. So, ma'am, may I write this paper in English? Yes. Ma'am, may I write this paper in Hindi? Yes. Ma'am, may I write this paper in any regional language? No, only Hindi and English. ठीक है, but rest it depend what are criteria and conditions you are falling into, and if you have doubt, do write in a comment section. Okay, so here let's discuss the section. The section are divided into 2 parts, A and B. We are going to see the same is given in your syllabus also. So section A of the syllabus include OT, which is called as an organization theory. So when you learn about OT, that is an organization theory, and OB, that is organization behavior. This is all about the study of individual and the organization. Okay, now we talk about section B, which is about the human resource management, that is HRM, and IR, that is industrial relations. Okay, so I hope the sections are clear, section A and B, and what are included in section A, what is included in section B is very clear, right? So we have 8 questions and candidate has to attempt 5 questions in all. So very good. So out of 8 you have an open door to attempt 5 questions. Question number 1 and 5 are compulsory. Okay, so now the examiner put a restriction on you that sir or ma'am, you have to appear question number 1 and 5, and that's a compulsory. Ma'am, what if I don't want to appear it? Don't worry, still your marks will be taken care from question number 1 and 5. You cannot miss it. It's a compulsory. That means you have to appear it, right? So ma'am, how to choose other questions? Yes, then we have remaining 3 questions which is need to be attempted. We have to choose at least one question from each section. That means section A and B. So one question number 1 and 5 is compulsory. Then we have to select one question from section A, one from section B, and the rest one can be repeated from A or B. Okay, so that's your choice. So ma'am, if I want to do question number 2A, but I want to do it 3B and 3C, can I do that? No. If you choose any part of particular questions, that will be counted in the sequence of your appear. For example, if you appear question number 3A, okay, and then you appear, say, you jump to the section B and you appear 6B or 6C. So the sequence of your attempt will be counted as question number 1 or 2 or so on. I hope you are getting my point. Okay, so please let me conclude in Hindi so that we can help other students also. तो आपका
टाइम है 250 मार्क्स का और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 8 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको, जिसमें से आपको टोटल में 5 क्वेश्चंस करने हैं। 2 सेक्शन में डिवाइडेड है ए बी। सिलेबस अगर आपने देखा हो तो सेक्शन ए में हमारा ओ टी एन ओ बी यानी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ध्यान रखिए, दो काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इंटरव्यू में बहुत बार इन डिफरेंसेस को पूछा गया, जिनको स्टार्टिंग से मैं हाईलाइट कर रही हूँ। और सेक्शन बी है आपका एच आर एम एन आई आई, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो मैम, मार्केट में हिंदी का कंटेंट नहीं मिल रहा तो कैसे करना है, क्या रेफरेंस करना है, ये सारे डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। कुछ जो असिस्टेंट हो सकती है, मैं डेफिनेटली आपको द बेस्ट पॉसिबल असिस्ट करूंगी। ठीक है, 8 क्वेश्चन में आपको केवल 5 क्वेश्चन अपियर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आपका कंपल्सरी होता है, यानी अगर आपका मन नहीं भी हो तब भी आपको अटेम्प्ट करना है, और आप अटेम्प्ट नहीं करोगे कोई बात नहीं, एग्जामिनर उसे अटेम्प्टेड मानेगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5। उसके बाद 3 क्वेश्चन हमें और करने हैं। तो सेक्शन ए से एक क्वेश्चन करना कंपल्सरी है, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन करना कंपल्सरी है, फिर आप एक जो बचता है वो आप किसी भी सेक्शन से चूज कर सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 ए कर रहे हो, उसके बाद मानिए 3 बी एंड 3 सी कर रहे हो, तो सीक्वेंस में आपके 2 अटेम्प्ट मान लिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट मान लिए जाएंगे, यानी एक का भले एक ही पार्ट क्यों नहीं किया हो, दैट विल बी काउंट एज 1 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे डाउट जो हैं, हमने जब पेपर 1 का एनालिसिस कराया था, स्टूडेंट ने रेज किए, और उन्हीं डाउट्स को मैं आज इस सेशन में कवर अप करती जाऊंगी। तो बेस्ट पार्ट यही है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट करें, ताकि मैं आपको एक्टिव सपोर्ट कर पाऊँ। आपके मन में 2 क्वेरी होगी, बट आपको आंसर 3 से ज़्यादा क्वेरीज का मिल सकता है अगर आप ऐसे क्वेरीज रेज करते हो तो। ठीक है, सो आई होप पेपर पैटर्न इज क्लियर and the mode of examination Hindi English is clear, marks clear, time is clear. Okay, so moving ahead with the question discussion. Question number 1 is, so we are solving with the section A, that means your mind should answer okay OTOB. So कई बार ऐसा देखा गया है कि HRM का कुछ क्वेश्चंस मिला दिए गए हैं, तो व्हाट टू डू, प्लीज स्टिक टू द OTOB। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट लिंक्ड हो रहा है, answer it in the language of OT and OB. If it's not linking, then switch it as a HRM. Okay, so we have to answer each of the following question in about 150 words, 10 into 5 यानी 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 10 मार्क्स ईच के, टोटल 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन 1 का वेटेज है। सो वी हैव टू राइट 150 वर्ड्स। मैम बहुत ज़्यादा लिखा, कम लिखा, तो कैसे पता चलेगा? यही होता है आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या पीवाई सॉल्यूशंस। हम पीवाई सॉल्यूशंस में क्या करते हैं कि मानिए आपका कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 1 ही ले रहे हैं जहाँ पे सेंसेशन और परसेप्शन के बारे में है, तो हम आपको सेंसेशन और परसेप्शन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज देंगे, दैट इज अबाउट कंप्लीट टॉपिक, लेकिन 151 वर्ड्स तक आपका स्पेसिफिक राइटिंग होगा और उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज में चला जाएगा कंटेंट। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेफिनेटली करना है। इससे आपको लगेगा कि आपकी हैंड राइटिंग में एक पेज में 150 हो रहा है, आधे पेज में 150 हो रहा है, या कितने लाइन में हो रहा है, आपको पिक्चर क्रिएट होने लगेगी। तो प्लीज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, आपने स्किप नहीं करनी। अगर आपको ये डाउट है कि कब करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस पुट करें, बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस के बाद मैं आपको उसका आंसर करूँगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1A। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डज सेंसेशन डिफर फ्रॉम परसेप्शन। ठीक है, सो इट्स अबाउट आस्किंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सेंसेशन एंड परसेप्शन। सो यू शुड मेंशन अबाउट द ब्रीफ पिक्चर अबाउट व्हाट इज सेंसेशन एंड व्हाट इज परसेप्शन, एंड देन यू कैन इंक्लूड विद द फर्दर डिफरेंसेस। नाउ वन क्वेश्चन मोर आई हैव रिसीव्ड इन द लास्ट सेशन। एक लास्ट सेशन में हमने जब एनालिसिस कराया पेपर 1 का, तो एक स्टूडेंट का क्वेरी था कि मैम मैं ट्री डायग्राम सब क्वेश्चन में बना लूँ, या हम थ्योरी पेपर में बहुत सारे डायग्राम्स बना लें। प्लीज़, ये बायोलॉजी का पेपर नहीं है। ठीक है, आप अगर इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पुट करोगे वो ज़्यादा इंप्रेशन पुट करेगा देन टू यूजिंग ओवर यूजिंग ऑफ द डायग्राम। हाँ, मानिए किसी स्कॉलर है, कोई ऑथर ने कुछ आपको डायग्राम्स दिए हैं या जहाँ पे विजिबल डायग्राम्स हैं, पुट एंड यूज इट, डेफिनेटली इट्स पुट अ गुड इमेज। ट्री डायग्राम के फॉर्म में आंसर देना है, दैट इज अ गुड इमेज, बट ओवर अप्लाइंग ऑफ अ डायग्राम इज नॉट अ सजेशन। सो व्हाट इज सजेशन इज यू कैन यूज एग्जाम्पल इंस्टेड, सो दैट एग्जाम में गेट एन इमेज कि भाई आपने ओवर एम्फोसाइजिंग रट्टाफिकेशन पे नहीं करी है, आपने जो करेंट सिनारियो है, एग्जाम्पल्स हैं, उससे डॉग को कनेक्ट करना सीखा है, प्रैक्टिकल लाइफ को सीखा है थ्योरीज के साथ, सो दैट विल बी अ गुड इम्प्रेशन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B, एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। सो ये क्वेश्चन देखने के बाद एक और क्वेरी मेरे माइंड में अभी रिकॉल हुई जो स्टूडेंट ने रेज की थी ड्यूरिंग देयर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उन्होंने अभी मेंस भी अपेयर किया. So, ma'am, should I write a difference between in the tabular form like this? No. Please write in the paragraph form. It's my humble request, or you can use it bullets or number 2, 3. Don't write this graduation or 12th format like table form. Avoid this. Diagrams, presentations, you have to use in the paragraph form only. Okay? So explain the major differences between transactional and transformational leaders. I have already shared the example in our shorts. We are covering some answers with example in the shorts also. वहाँ पे हमने ट्रांजेक्शनल लीडर कौन है हमारे बिजनेस एम्पायर में, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कैसे हैं, तो अपने लीडर का एग्जाम्पल देना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल व्यू पॉइंट में एग्जाम्पल देने लगते हैं, वो नहीं देना. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में एग्जाम्पल देते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट में ऐसे काम किया तो ये ट्रांजेक्शनल में फॉल्ट किया, इस डिपार्टमेंट में ऐसे काम किया तो नहीं. यहाँ पे लीडर की बात हो रही है. क्वेश्चन को फील करो, अंडरस्टैंड करो, यहीं पे मार्क्स कटते हैं, आपको पता नहीं चलता है. तो लीडर शुड बी स्पेसिफिक. ठीक है. सो आपने वो शॉर्ट्स में मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं रतन टाटा का, तो आपने वो फील करना है वो एक पर्टिकुलर पर्सन इज लीडर. यू हैव टू आंसर इन द लीडर. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पे लीडर के बारे में पूछा. आप समझना मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको. अगर डाउट है पूछो, लेकिन मिस्टेक मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने एक्स वाई प्लेसेस से पढ़ाई करी और वो पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, यहाँ पे लीडर की बात हो रही है. अंडरस्टैंड करो. ठीक है. सो आपने आज ही से ऑफिसर की तरह सोचना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना. मेरे बात भी मत मानो, चलो कि मैं बोल रही हूँ नहीं मैम बोल रही तो मेरे को ये मान लेना, नहीं मानो, बिल्कुल नहीं मानो. आप ऑफिसर हो यार, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है. ठीक है. कहीं ना कहीं आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो कंट्री को चलाने के लिए. तो क्वेश्चन को फील करो, अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन की डिमांड क्या है. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1C. Why do we need to coordinate formal and informal organizations? Very good example, that because we know what is formal, we know what is informal, but what is the need? What is the best thing we bring up by coordinating things instead of like कि ठीक है ये तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारा काम है, हमारा, अरे तुम इनफॉर्मल कर रहे हो, मेरे को तुमसे मतलब नहीं, आई वांट टू गो फॉरवर्ड, नहीं ये सारे नहीं. द क्वेश्चन वांट्स टू ब्रिंग आउट योर इनहेरेंट राइटिंग स्किल. Okay, the officer, please let me know if you working in any department and you find there are some people who follow the formal system, but there are some also who are following the informal system. So how you help them or coordinate them instead of fighting them? You getting my point? So think like an officer, okay, but write as like a author. ठीक है. नेक्स्ट इज 1D. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. सो प्लीज 2 लाइन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दो और उसकी लिमिटेशंस मेंशन कर दो. कंटेंट में कमी है, वर्ड लिमिट नहीं मिल रहे, कुछ लिमिटेशंस नहीं याद आ रही है. प्रैक्टिकल लाइफ का कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज हो तो लिखना, कुछ भी मत लिख के आना. ठीक है. नेक्स्ट 1E. How does socialization help in maintaining organization culture? Very important. कैसे कैसे socialization जो है organization का culture बनाने में मदद करते हैं. तो हम करते नहीं, नॉर्थ इंडिया वाले, ये साउथ इंडिया वाले, और एक स्पेसिफिक कल्चर डिवाइड हो जाता है. सो यू कैन राइट, बट ये एग्जाम्पल मत दे देना. ठीक है. यू हैव टू राइट सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 है. आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर. इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 है. How have organization been defined? Very good. So you have to define about the organization. Compare different perspective of organization in India and Western countries. देखिए आप देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच मांगी जा रही है, रट्टाफिकेशन नॉलेज अब नहीं मांगी रही. ये एक सरप्राइज आपको देखने को मिला कि थ्योरी के पेपर में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो लिया ही है, बट साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल अप्रोच देखा जा रहा है. क्लियर. 20 मार्क्स का है. ठीक है. नेक्स्ट इज what are the big 5 personality traits. I already covered this very it was in news. Big 5 personality traits. So which one seems to have the biggest impact on performance? How would the knowledge of these help the manager in his job? अब आप इसमें से बहुत सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि मैम मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि मेरी नज़र में कौन सा इम्पैक्ट कर रहा है, बट मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बता दूंगी, क्योंकि वहाँ पे ना इतना टाइम नहीं होता सोचने का. आपने वेल एडवांस प्रिपेयर करके जाना है कि
ये जो 5 पर्सनालिटी ट्रेट है, आपकी पसंदीदा कौन सी ट्रेट रहने वाली है और क्यों रहने वाली है, ये आप खुद से क्वेश्चन करके जाएंगे विथ एग्जाम्पल. सो विच वन सीम्स टू बी द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड how would the knowledge of these help the manager in his job? Clear? Next is 2C, explain the phases of developing quality circle. Very different question. They are just asking about the different phases to develop the quality circle. Means if you want a quality circle, what the phases one has to go through to develop that circle. Okay, so this is all about the your creative writing. Question number 2 ABC. ऑप्शनल है, आता है तो अटेम्प्ट करना, नहीं तो आगे बढ़ जाना. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3A. व्हाट आर द मेजर क्रिटिसिज्म लेवल्ड अगेंस्ट Herzberg two-factor theory of motivation? Explain its contribution for the better understanding of motivation at the workplace. So specifically बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे मैम ये थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्यों ज़रूरी है. क्लियर. नेक्स्ट इज 3B. Examine the different approaches of designing organizational structure. Evaluate the process involved in it. So how you will, like, what are the different approaches and how it will be evaluated, means we have to mention about the process also. ठीक है. ये सारों के मैं आंसर्स दूंगी. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स. ठीक है. बट अभी वाई एम होल्डिंग इट ऑन, मैं क्यों अभी लेट कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं रेस में भाग रही हूँ, क्योंकि आई प्रेफर टू वर्क लाइक अ टॉर्टाइज एंड रेगुलर मूवर. सो व्हाट आई वांट टू डू इज अभी करंट ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ केस स्टडीज आई एम वर्किंग ऑन दैट, सो दैट आई गिव यू द रीसेंट एग्जाम्पल एंड द बेस्ट आंसर्स. ठीक है. सो फॉर बेस्ट एंड द क्वालिटी थिंग यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू वेट फॉर इट. ठीक है. नेक्स्ट इज 3C. How does organizational transition differ for organizational change and renewal? अब इससे क्वेश्चन जो हमारे अपियर स्टूडेंट थे उन्होंने बोला कि मैम कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मली सारा थ्योरी सारा सिलेबस पढ़ गए, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो सरप्राइज आ जाते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है. तो मैं उसमें आपको सजेस्ट करूँगी, अगर टर्म आपको सुना हुआ है या उसका हिंदी पढ़ के आपको कुछ मीनिंग क्लियर हो रही है तो आप उसे अपियर करो. अगर नहीं क्लियर हो रहा तो स्किप कर सकते हो तो स्किप करो. डोंट राइट एनीथिंग लाइक जस्ट कि मैंने अपियर किया है पेपर में, मैं तो लिख के आ गया या आ गई और मुझे मार्क्स मिलने चाहिए एंड यू हैव अ फाइटिंग स्पिरिट. जस्ट बी प्रैक्टिकल. ठीक है. So in this we know about organization transition and we know about organization change because these are the specific chapter in your syllabus. But renewal is not a specific part of your syllabus, so you have to connect the dots and you can write the answer very easily in this case. Okay. So this is about your question number 1, 2 and 3. Okay. Moving ahead with question number 4. Why does organizational politics emerge? So very good. I know you people can answer it very easily. कि क्यों emerge हुआ? ठीक है. So you don't have to write only one perspective. You can write the manager's perspective. You have to write the organization perspective. You can write the worker's perspective. ठीक है. What are the consequences and suggest measures to avoid them? Direct question एक तरीके से. पहला डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा है ऑप्शनल क्वेश्चंस में. 4B. There is a need for integrating individual and organizational goal. I already explained this during the discussion of the definition. So if you ever appeared those sessions, this is the benefit. Examine this statement. How does it affect organizational effectiveness? ठीक है. So you have to connect this line with the organizational effectiveness. 20 marks. ठीक है. Distinguish between delegation of authority and decentralization. Very smart question. Already came in one of the government exams which we raised, that the same question has been repeated in the other government exams. So there might be a situation, so there already been a situation that the questions are repeating from one government exams to other government exams. Okay. So question number 4ABC. Now I want to conclude about the student who appeared. So the doubt is this, ma'am, what if I won't able to get a time to do answer writing after the prelims? I would request you, please do before the prelims while you are winding up your preparation. Don't wait for after prelims because you don't know what surprises you are going through, either with your health, your family situation, your preparation, your surprises, your mental state, anything. So please at least do some questions or some test before prelims, that is while winding up your optional paper. And if your time permits, you can redo some test
after the prelims, but don't leave it for the end time, that is after prelims. ठीक है, it's my request. Second point which has been raised and shared their opinion कि एक तो आंसर राइटिंग को लेकर कि मैम कब करना चाहिए, मैंने प्रीलिम्स के बाद सोचा था रखा, लेकिन हो ही नहीं पाया, इतना प्रेशर हो जाता है कि अब तो मेन से इतने दिन बाकी, इतना टाइम बाकी, अब कैसे करेंगे. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ प्रीलिम्स से पहले करके रखना है. कुछ आर टेस्ट अगर आपको परमिट कर रहा है इंस्टीट्यूट, तो आप वो प्रीलिम्स के बाद डेफिनेटली अटेम्प्ट करो, या आप प्रीलिम्स के बाद क्या करो, सबसे बेस्ट थिंग मैं आपको सजेस्ट करूँ, अपने PY सॉल्यूशंस करो. ठीक है, आपने भले पढ़ के रखे हो, प्रिपेयर करके रखे हो, क्रिएटिव करो और करो. या अब हम एक क्वेश्चंस बुकलेट निकाल रहे हैं, आपने सिर्फ उस पर प्रैक्टिस करने के लिए, आपके लिए रहेगा ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, कि बस आपने प्रैक्टिस करना है कि आपको लगे कि हाँ मेरी स्पीड ठीक है, और अभी मेरे को मैं कुछ भूला नहीं है, भूली नहीं है, और मेरे पास है कंटेंट, राइट. बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुड बी बिफोर प्रीलिम्स. ठीक है, उसके बाद एक जो रिव्यू शेयर किया एक स्टूडेंट ने जिन्होंने अपीयर किया था कि मैम वोकैबलरी कलेक्ट हो गई और सेशन से हेल्प मिला, PY सॉल्यूशन से भी बहुत हेल्प मिला, बट क्रिएटिविटी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर ली थी एग्जामिनेशन में इस बार, तो वो डॉट्स कनेक्ट करने में ना 5 मिनट या 6 मिनट लग जाते हैं, उसको मिनिमाइज करना बहुत ही मतलब चैलेंजिंग हो गया था, बट एनी हाउ आई मैनेज्ड इट. तो देखिए उसके लिए क्या है, जो क्रिएटिविटी है, तो ये उन्हीं स्टूडेंट का रिव्यू था जिन्होंने प्रीलिम्स के बाद के लिए टेस्ट सीरीज रखी थी, और वो किसी कारणवश वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और उन्होंने सिर्फ सॉल्यूशन डिमांड कर लिया. ठीक है, एंड दे वेंट थ्रू दी सॉल्यूशंस, उनके पास PY सॉल्यूशंस भी थे. तो आपसे रिक्वेस्ट है ये टेस्ट ज़रूर से ज़रूर करेंगे, लेकिन बिफोर प्रीलिम्स. ठीक है, नेक्स्ट इज लेट्स मूविंग अहेड विद सेक्शन B. ठीक है, सेक्शन B की ओर बढ़ते हैं. Again, question number 5 is the compulsory. Answer each of the following question in about 150 words. 5A, discuss the problem faced in human resource problem. Direct question. Elaborate the merit and demerit of 360-degree feedback. Direct question. ठीक है, why is collective bargaining not effective in India? Explain its reason. No, nothing मतलब major to divide. अगर आपने जो है न्यूज़ अपडेट्स आप रेगुलर जा रहे हो तो यू कैन पुट वेरी वेल. How is voluntary separation different from involuntary separation? Already covered, a good answer. Though if you have seen that these are direct. Explain the productivity implications of labor turnover. तो labor turnover की वजह से productivity पे क्या impact पड़ रहा है, you have to mention them. Next is moving ahead with question number 6. Question number 5 is compulsory. You have to appear all the 5 parts. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन along with creativity. अब एक और बात याद आ गई जो स्टूडेंट ने शेयर करी, मैम ये तो 360 डिग्री फीडबैक हर बार आता है, ये नहीं इम्पॉर्टेंट है. प्लीज़, इम्पॉर्टेंट सारे चैप्टर्स हैं, डोंट डू दैट सिली मिस्टेक. यू हैव टू फोकस इन वॉट, कि जो आपके सिलेबस में चैप्टर का हेडिंग है ना, उस पर कमांड ज़रूर करना. उसके बाद आपको जितना टाइम परमिट हो, लाइक अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चैप्टर का नाम है तो ये टॉपिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए. 360 डिग्री फीडबैक चैप्टर का नाम है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये चैप्टर पे आपको कमांड करनी है. कोई जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी ही रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6A. Tests are useful in predicting the failure rather than success of the candidate on the job. Comment. So your creativity. So they are asking your views into it. 6B, explain the rationale of worker participation in management. Suggest measures to make it more effective. So what's अब देख रहे हैं 20 marks का question divided into 2 parts. ठीक है, so first part is you have to give the rationale of workers participation in management. ठीक है, अ वेरी गुड क्वेश्चन रेज बाय द स्टूडेंट कि मैम यहाँ पे पॉलिटी के इंसाइट्स लिख सकते हैं क्या, 1 से 2 लाइन मैक्सिमम, अननेसेसरी ओवर पुटिंग नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट 6C, multiplicity of union has retarded the effective working of the trade union in India. Discuss. I already shared this in the current affairs session कि आपको ये टॉपिक आए क्यों, इट वॉज इन न्यूज ऑन द रेगुलर न्यूज़. ठीक है, कि यूनियंस तो एक इशू हो ही रहे हैं बट मल्टीप्लिसिटी हो जा रही है, तो इन दैट केस व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन ट्रेड यूनियन पिक्चर इन आवर कंट्री और रिस्पेक्टिव टू द ऑर्गेनाइजेशंस. सो दैट इज ऑल अबाउट. ठीक है,
And for about the current news, many students ask about it because we have n student who purchase books, who attempt test, or who are preparing through video sessions through years. So what we are trying to do is WhatsApp channel and YouTube community section. We keep on posting the news update. देखिए रोज रोज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप उतना ही रोज रोज टाइम वेस्ट करोगे। एक ही मटेरियल, एक ही बुक यूज़ करनी है। आपने क्या करना है, हम न्यूज़ पोस्ट करेंगे एक साथ बल्क, आपने उस समय रीड कर लेना है। 90% केस में आपको वो यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अपनी बुक खोलनी है, कहाँ पे कुछ इंसाइट लिखने हैं, आप वहाँ पे एग्जाम्पल्स पुट कर देना। डिफरेंट बुक्स मत बनाना, बार बार रिक्वेस्ट करते हो। Next is 7A. What do you mean by model employer? Critically examine the role of public enterprise in acting as a good model employer. So this was a new concept. Next is 7B. Elucidate the executive development technique relating to the interpersonal and decision making skill. Your creativity is asking, how is job design different from job analysis? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 8th, there are two approaches of managing industrial dispute in an organization, preventive and curative. Examine this statement, also evaluate their individual effectiveness. So 20 marks questions, and if you see, the question is divided into two different parts, that is weightage to 10 each. Okay, so you have to mention both preventive and curative measures. Next is 8B. An experiment in profit sharing scheme on a wide scale would be definitely undertaking a voyage on uncharted seas. Discuss this statement. A theory given by one of these professionals, and they put it as a quote and they ask you about this statement. Okay, 8C. Explain the organs of ILO. So डायरेक्ट क्वेश्चन है ILO के परस्पेक्टिव में। इट्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑलरेडी, सो ILO के परस्पेक्टिव पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। कई बार एक ये होता है कि मैम 7 का मानिए ये दो पार्ट आ रहा है, 8 का ये दो पार्ट आता है, दूसरा पार्ट नहीं आता, या हाफ आता है, या क्रिएटिव आता है, तो क्या करना है, ऑलवेज कैलकुलेट द मार्क्स वेटेज। है यू नो अबाउट 40 मार्क्स, है नो अबाउट 30 मार्क्स, मस्ट गो विद दिस। ठीक है, बिकॉज इफ यू पुट क्रिएटिव समथिंग यू कैन गेट 2 or 3 marks, but if you get creativity in this you will get 3 or 2-3 marks. Here is 33 marks, say here is 43 marks. It's not going to get 120 out of 20 or 10 out of 10, but I'm helping you to just filter it which question is valuable for you. So this is all about the paper pattern, how the questions came. This analysis is definitely going to help in the ways you have to know and you have to feel what type of questions are coming, how these questions are coming, and actually you can connect the dots. And there are some students who want to know about this sheet, so I'll share you my tracking sheet from previous various year, where I'll share you what type of questions are coming from which subjects and chapters. Okay, so I hope this analysis helped you a little bit even. So take the maximum benefit, and in case of any doubt, feel free to ask in a comment section, and we'll come up with the model answers along with the recent example or diagrams wherever is required. Please, before going ahead, I'll request you that please don't write political examples. Please understand the demand of question and write example accordingly. Don't write anything everywhere. And diagram is good. Wise use is good. Anything excessive is dangerous. So you know well, because you are going to be officer. So see you in the next session. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.